सो लेट अस स्टार्ट विथ नियो मार्क्सिज्म, राइट. नियो मार्क्सिज्म को स्टार्ट करते हैं एंड एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं अभी तक की क्या कहानी रही है, व्हाट हैज़ बीन द स्टोरी सो फार, सो दैट पीपल हु हैव जॉइंड अस टुडे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट. वी वर कवरिंग मार्क्सिज्म, हम लोग मार्क्सिज्म को कवर कर रहे हैं. एंड मार्क्सिज्म में वी हैड डिस्कस दैट देयर आर जनरली टू स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म. वन is called as the classical Marxism, also called as orthodox Marxism. The other is called as neo-Marxism, right? दोनों में difference क्या है? दोनों में first and foremost similarity ये है that both are inspired from Karl Marx, right? Karl Marx during his lifetime gave many theories, right? Many theories वो दे पाया which were published during his lifetimes, right? For example, Das Kapital में उसकी theory of dialectical materialism थी, right? Historical materialism था and all that thing that got published. But there were many theories which remained hidden inside his, you can say, cupboard, which were never published. But after his death, people went there and they found them, right? And they were later on published, right? तो अब जो ये पुरानी theories में जो support करते हैं which were published, ठीक है, तो orthodox Marxists are the people who believe that the original ideas of Karl Marx were what? The theory of dialectical materialism, historical materialism, class conflict, ठीक है, surplus value, ये सब publish हो गया था. एंड भाई कार्ल मार्क्स यही कहना चाहता था. These were his main ideas. जो नहीं publish हो पाया वो भाई बेकार थे, in the sense वो secondary ideas थे, right? But the neo-Marxism, they believe no sir. ये जो secondary ideas which are being claimed by classical Marxists as secondary in so-called nature, sir, these were the real thoughts of Marx. And real Marx इसके बारे में बात करता है. What were these ideas dealing with? These ideas were dealing with alienation of man. These ideas were dealing with freedom of man. These ideas were dealing with emancipation of the man. इन सब की बात कार्ल मार्क्स करना चाह रहा था, ठीक है. And therefore we see neo-Marxism as a school believes in more subtle form of exploitation. उसको expose हमें करना है, ठीक है. Neo-Marxism as a school believes in multiple ways in which the working class is exploited, ठीक है. Not only economically but culturally, right? But politically. हर एक step में जो exploitation हो रहा है, we need to address that, ठीक है. They believe that even if socialism comes, so called as Lenin वाला socialism आ गया, Marx वाला socialism आ गया, still they would be exploited if we don't study the subtle form of exploitation. तो यहाँ पे the exploitation which Karl Marx is talking about is much more direct form of exploitation, which is very very evident, whereas neo-Marxism as a theory talks about the subtle aspect of exploitation which is very very hidden in nature. तो आपको थोड़ा सा कहते हैं ना बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, राइट? ठीक है, स्प्लिट एंड्स. अगर आप बाल को बढ़ाते हैं तो आपके स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे निकल जाता है, ठीक है, राइट? द गर्ल्स मस्ट बी नोइंग, राइट? ठीक है, तो ये स्प्लिट एंड का ये जो कॉन्सेप्ट है वो नियो मार्क्स लगाता है मार्क्सिज्म में, राइट? एंड दैट इज वेयर नियो मार्क्सिज्म एज अ स्कूल राइज, ठीक है. फिर हम लोगों ने अभी तक क्या कवर कर लिया है? क्लासिकल मार्क्सिस्ट के अंदर हम लोगों ने कंटेम्प्रेरी टाइम्स में या मार्क्स के बाद हु टुक अहेड, वी नो लेनिन, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया. देन वी नो रोजा लग्जमबर्ग, राइट, जिसको हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया. देन वी नो माओ, जिसको हमने कल डिस्कस कर लिया. इन नियो मार्क्सिज्म विच वी विल बी डिस्कसिंग, नियो मार्क्सिज्म में डिफरेंट थिंकर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड ग्रामशी, राइट, we find Althusser, right? We find Herbert Marcuse, right? We find Jürgen Habermas. इन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. Is this clear? नियो मार्क्सिज्म में ये आता है, right? So this is the story so far. जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं तो ये रीकैप आपके सामने हो चुका है. ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में अच्छे से, ठीक है. लेनिन की बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कस किया है, रोजा लग्जमबर्ग को भी और माओ को भी. टुडे वी विल बी बिगिनिंग विद नियो मार्क्सिज्म. किसी का भी यहाँ तक कोई भी डाउट है
तो आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद हम नियो मार्क्सिज्म को फुल फ्लेज्ड वे में बिगिन कर देंगे. पूछ लो. ठीक है, चलो. सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट अप विद द नियो मार्क्सिज्म. नियो मार्क्सिज्म को हम बिगिन करते हैं, राइट. सो नियो मार्क्सिज्म, if I talk about this as a doctrine, this as a philosophy, this as a theory, therefore अगर मैं ये बोलूँ कि it is a theory, it is a doctrine, ठीक है, it is a philosophy, अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ तो सर it is not a fixed, ये सफिक्स यहाँ पे लगना चाहिए, ये प्रीफिक्स यहाँ पे लगना चाहिए, दैट इट इज नॉट अ फिक्स्ड थ्योरी, नॉट अ फिक्स्ड डॉक्ट्राइन, नॉट अ फिक्स्ड फिलॉसफी. एंड नियो मार्क्सिज्म के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स आएंगे, बिकॉज अभी तो हमने पढ़ा क्या कि नियो मार्क्सिज्म बेसिकली इज डिस्कसिंग अबाउट n नंबर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, n टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इट इज टॉकिंग अबाउट सटल एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. अब बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, राइट. तो हो गया ना नियो मार्क्सिज्म भी बहुत सारे टाइप का, राइट. बस राइट. तो ये चीज़ नियो मार्क्सिज्म की एक चीफ आप कह सकते हो सिग्नेचर है, राइट. ठीक है. नियो मार्क्सिज्म अराइजेज फ्रॉम द, यू कैन से, फेलियर ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म could not succeed, it could not succeed, right. ठीक है. तो नियो मार्क्सिज्म ने क्या करा, इन्होंने न्यू ट्रेंड्स निकालने की कोशिश करी, राइट, इन टू द ओल्ड मार्क्सिस्ट थ्योरी. एंड दे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिड नॉट सब्सक्राइब टू द सो कॉल्ड एज मार्क्सिज्म बीइंग जस्ट एन इकोनॉमिक, यू कैन से, डॉक्ट्रिन. इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, दैट बेसिक स्ट्रक्चर इज जस्ट, you can say, sorry, the superstructure is mere reflection of the base, and it is everything is about economics only, right. The politics, the society, the culture, ठीक है, all this is part of the superstructure which is merely the reflection of the base. इस बात को ये लोग रेफर नहीं करते हैं, ठीक है. and they will be analyzing Marxist theories in a very subtle way, right. and they find that there can be many levels of exploitation, economic level पे, sociological level पे, ठीक है, political level पे, cultural level पे, psychological level पे, mental harassment, right, ठीक है. and therefore we need to find many ways through which this exploitation could end and we could lead to human freedom. So therefore the main aim of all this you can say neo-Marxist is human freedom, human emancipation. और यही neo-Marxist believe कि मार्क्स का भी यही एम था, राइट. एंड देयरफॉर they will be discussing the Marxist theory of alienation. इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं. They are inspired much more from Marxist theory of alienation, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट. ठीक है, इसके बारे में they are much more inspired from the role of culture, ठीक है. They are much more inspired from Gramsci का एनालिसिस लेते हैं मार्क्स में, राइट. ठीक है. and this becomes the foundation of neo-Marxist school of thought, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है. तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म जो कि क्लासिकल मार्क्सिज्म का चीफ था, ठीक है, दैट इज all the aspects of our social life, right, all the aspects of the political life, cultural life, they are merely the reflections of the economic life. Well, sorry sir, ठीक है, we don't believe in this, we are not buying this, definitely we are not buying this, ठीक है. तो ये चीज यहाँ पे ध्यान
रखना, ठीक है. तो दे विल बी डीलिंग विथ लार्ज वेराइटी ऑफ इश्यूज, राइट. दे विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिज्म, ठीक है. दे विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, अभी हम सब बात करेंगे. दे विल बी टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म. याद है फेमिनिज्म में पढ़ाया था मैंने कि एग्जिस्टेंस पे ध्यान दो, ह्यूमन पे ध्यान दो, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सोसाइटी उन पे ध्यान दो. नॉट ओनली कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर, रेस्ट ऑल आर जस्ट मियरली द रिफ्लेक्शंस ऑफ द बेस. दिस इज अ वेरी वेरी नैरो इंटरप्रिटेशन सर, बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है. दे विल बी गोइंग फॉर साइको सोशल एनालिसिस, इन टाइप की बात करेंगे, ठीक है. तो ये चीज यहां पे ध्यान रखना. नाउ द क्वेश्चन कम, सर डू दे डायरेक्टली अटैक ऑन दिस कि भाई क्लास कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा होता ही नहीं है जैसा कि मार्क्स ने क्लेम करा था? नो, दे डोंट अटैक ऑन दिस, क्योंकि ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, राइट, ठीक है. तो इट देयर क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा होगा ही होगा, दे बिलीव, ठीक है, राइट, ठीक है. बट सिर्फ जो मार्क्स ने बोला था कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू बुर्जुआ वर्सेस प्रोलिटेरियट एंड दैट टू प्राइमरीली इकोनॉमिक इन नेचर, बस मार्क्स ने तो ये बोल दिया था, ठीक है. हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, सिंपल एज दैट. दे बिलीव, सॉरी सर, व्हाई सॉरी? देयर आर n number of class conflicts and there are n number of participants in the you can say conflicts, ठीक है. तो एक ये सिर्फ डोमिनेंट क्लास और ये इसका नहीं है, ठीक है, राइट. ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, हर लेवल पे आपको क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देंगे. मियरली ये इकोनॉमिक इश्यूज से नहीं है, राइट. So they are going for much more subtle analysis of the entire society, ठीक है. तो ये यहां पे ध्यान रखना. सर इज नियो मार्क्सिज्म अपोज टू कैपिटलिज्म? डेफिनेटली, क्योंकि मार्क्सिज्म अपने आप में लगा रहे हो तो कैपिटलिज्म को तो अपोज करना ही पड़ेगा. एंड यस वी डू. सर देन डू दे बिलीव कि सर कैपिटलिज्म एंड हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बताइए अनम्यूट करके. देन तो यही होना चाहिए ना, कैपिटलिज्म शुड एंड. नो सर. नो. व्हाई? बिकॉज देयर आर various subtle type of exploitation which will still remain even if capitalism ends. This is what they are talking about. देख रहे हो ना, क्योंकि भाई इनका एम ही बहुत बड़ा है ना, ह्यूमन लिबरेशन करना चाहते हैं. ह्यूमन लिबरेट करने के लिए माइंड में ये घुसना चाहेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है. देश से कि ह्यूमन के माइंड में आ चुका कंज्यूमरिज्म, तो उस कंज्यूमरिज्म की वजह से, ठीक है, Okay, I found this on the web. ठीक है. So they will be entering into the minds and they believe that human minds have filled with consumerism, right? And that is so much deep in them, ठीक है, कि ये जो लत है ना मटीरियलिज्म की, ये कभी हटेगी ही नहीं. That is what they believe, right? ठीक है. हर्बर्ट मार्क्यूसे, he will be given the concept of one-dimensional man, right? Right. He believes that man has just become one-dimensional. One is a seller, other is a buyer. This is what our lives have been reduced to. ठीक है. तो even if capitalism ends, ठीक है, we will still be hungry for more and more. तो देख रहे हो ना, इनका मकसद ही है ह्यूमन इमेंसिपेशन वगैरह, ठीक है. So they believe that merely ending capitalism, ठीक है, is not the, you can say, final end, right? So they want an elaborate economic, political, cultural system, ठीक है, which tend to, you can say, support individual freedom. एक ऐसा हमें सोसाइटी का निर्माण करना है, ठीक है, where there will be true freedom, ठीक है. तो ये यहाँ पे ध्यान रखना. इज दिस क्लियर यहाँ पे, राइट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज दे आर लुकिंग फॉर, ठीक है. दे आर लुकिंग टू क्रिएट अ काउंटर कल्चर, ठीक है. दे आर लुकिंग टू क्रिएट अ काउंटर कल्चर, ठीक है, which will support the importance of, you can say, different aspects, ठीक है, that like they will be
they will be challenging the male domination, they will be challenging the white domination, all kind of suppression जो होगा, ठीक है, उन सब के अगेंस्ट हम बात करेंगे, राइट, ठीक है. दे विल बी चैलेंजिंग द कंज्यूमर कल्चर, ठीक है, दे विल बी चैलेंजिंग द यू कैन से पीपल हु एक्सप्लॉइट एनवायरमेंट, ठीक है. ऑल दिस, ये काउंटर कल्चर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो नियो मार्क्सिज्म सीक्स टू इवॉल्व दिस ह्यूमन फ्रेंडली काउंटर कल्चर, ठीक है. ये चीज ध्यान रखना. दे बिलीव कैपिटलिज्म इज नॉट मियरली एन इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन. कैपिटलिज्म का सर्वाइवल इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट culture which support capitalism, the concept of hegemony, right, ठीक है. तो अगेन वो मार्क्स से यहाँ पे डिफर करते हैं. कैपिटलिज्म इज नॉट merely an economic system which is preserved by the state, right, it is preserved by the civil society through its hegemony. Is this clear यहाँ तक? is everything clear सबको? ठीक है. तो this is what they talk about, ठीक है. Right, I hope this is absolutely clear, ठीक है. Similarly we see they will be departing from the theory of historical materialism, right, that whatever happens in history happens due to the material conditions. History is a function of matter, material forces, right, which was an important integral part of classical Marxism. इससे वो लोग हटेंगे, right, and they will be entering into a broader interpretation of history. They are very much inspired from Hegel, right, Hegel's concept of alienation, right. They are very much inspired from Sartre's concept of existentialism, right. इन सब से वो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है. जीन पॉल सार्त्रे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, राइट, कहाँ पे, इन फेमिनिज्म, इन सब से वो इंस्पायर होते हैं, राइट. दे वांट टू गिव अ वेरी करेक्ट एंड अ वेरी वाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म. स्ट्रक्चरलिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं लोग, राइट, ठीक है. एग्जिस्टेंशियलिज्म से, हीगल के आइडियोलॉजी से, आइडियाज से, राइट. दे बिलीव हिस्ट्री इज नॉट मेयरली सो मच सिंपल एज क्लेम्ड बाय द प्रोपोनेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म. इट इज नॉट सो मच सिंपल, राइट. हिस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट, ठीक है. तो वी नीड टू स्टडी इट इन अ मोर डीप मैनर, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना. सिमिलरली वी सी दीज नियो मार्क्सिस्ट, दे अगेन रीडिफाइन द रोल ऑफ इवन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के रोल को भी ये लोग रीडिफाइन करेंगे, राइट. एंड दे डोंट बिलीव कि अगर हम सिर्फ वायलेंटली, इफ वी गो फॉर अ वायलेंट रिवॉल्यूशन, इट विल एंड all forms of exploitation. No sir, revolution has to be social, cultural, economical, political, at multiple levels they would be talking about, right, ठीक है. सिर्फ socialist revolution in the economic sphere will not be enough, right. We need to go for continuance of revolution in cultural sphere, ठीक है. ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है. वी नीड रिवॉल्यूशन इवन इन पॉलिटिकल स्पीयर, इन इंटेलेक्चुअल स्पीयर, आइडियोलॉजी का रोल, ठीक है. एंड एंटोनियो ग्राम्शी, वी ऑल हैड स्टडीड दिस, एंटोनियो ग्राम्शी, राइट, ठीक है. ही हैड सिवियरली आर्ग्यूड दैट सुपर स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस. इट इज नॉट नेसेसरली डिपेंडेंट अपॉन द बेस, राइट. सिमिलरली विल बी स्टडिंग अभी हम लोग नियो मार्क्सिज्म में अल्थुजर, ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी structures. There are multiple structures in the society, multi-dimensional structures, right, ठीक है. तो ये भी हम लोग करेंगे, and which are independent of the base, ठीक है. तो we should not only start from revolution from base as claimed by the classical Marxists, we should also start it from these different superstructures, ठीक है. It may be, the revolution may be started from any part of the superstructure and then can percolate even to the base, ठीक है. तो ये चीज यहाँ बिलीव करते, ठीक है. सो बेसिकली न्यू मार्क्सिज्म का ये मोटा मोटा थॉट है. किसी का भी कोई डाउट अभी तक जो भी हमने पढ़ा, एनी डाउट,
एनी डाउट पूछ सकता है. आकांक्षा, अक्षत, अक्षय, अमित, कृष्णा, ललित, ऋतु, शैबल, शुभम, शुभांगी, श्वेता, सौरभ, सूरज. ठीक है, आई होप जो भी आज नए आए उन्हें समझ में आ रहा होगा. ठीक है, पूछ लो. ठीक है, कोई डाउट नहीं है, तो लेट अस मूव अहेड. ओके, सो ये हम लोगों ने न्यू मार्क्सिज्म को पढ़ा. नाउ लेट अस गो इन डीप. ठीक है, न्यू मार्क्सिज्म को भी, राइट, न्यू मार्क्सिज्म को भी वी क्लासिफाई इनटू मोटा मोटा 2 सब स्कूल्स. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द critical school, right, and the second is called as the structural school, right. Now what are the difference between both of these two schools, right? ठीक है, both of these two schools में क्या अंतर है? So it is said that this critical school majorly gives a very very humanistic interpretation of Marxism, right. It will be specifically focusing on alienation. ठीक है, right. It will be talking about humanistic emancipation. इन सब पे ज़्यादा फोकस करेगा, right. Whereas this structural school is a very very scientific orientation, right. Means हम भी subtle form of exploitation को study करेंगे, but we will be studying it in a much more scientific manner, whereas we will be studying it in a much more humanistic manner, right. They want structural transformation of the society. They will be much more focusing on the superstructures. ठीक है, how are they independent of the base, right. And therefore these are called as structural Marxist. ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान. ठीक है, now let us start off with the first. ठीक है, 2 डायरेक्शन में न्यू मार्क्सिस्ट डेवलप होता है. वन इज द क्रिटिकल डायरेक्शन, द अदर इज द स्ट्रक्चरल स्कूल. ठीक है, एंड फर्स्ट इज द क्रिटिकल स्कूल. ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल स्कूल जो डेवलप होता है, राइट. क्रिटिकल स्कूल एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ क्रिटिक. ठीक है, नाउ इट इज अ क्रिटिक ऑफ मेनी, यू कैन से डिफरेंट प्रिवेलिंग थ्योरीज. बिकॉज इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा इज ह्यूमन इमेंसिपेशन. Agenda is human emancipation. It is in the direction of humanism, right? And they are very very much inspired from the text of Marx, that is economic and philosophical manuscripts. ये सब basically critical theory का main part बनते हैं. इनके बेस पे basically critical theory आती है, right? ठीक है, and critical theory, what does this critical theory talk about? ठीक है, they start first and foremost start criticizing capitalism. दे जबरदस्त वे में दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कैपिटलिज्म. वी नो दैट. ठीक है, ये तो करना ही है क्योंकि मार्क्सिस्ट और कैपिटलिज्म को तो क्रिटिसाइज करोगे, राइट. बट नॉट ओनली कैपिटलिज्म, दे ऑल्सो क्रिटिसाइज व्हाट? क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड प्राइमरीली सोवियत वाला जो लेनिन लेके आया था, सोवियत ब्रांड ऑफ मार्क्सिज्म, इसको भी ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं. व्हाई? बिकॉज दैट लेड टू टोटलिटेरियनिज्म. ठीक है, दैट इंस्टेड ऑफ गिवन फ्रीडम इट एक्चुअली स्नैच्ड फ्रीडम. वी ऑल नो दैट व्हाट लेनिन डिड एक्सेट्रा. ठीक है, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन यूएसएसआर, राइट. सो दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस, राइट. ठीक है, दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ, यू कैन से, ऑल काइंड्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस विच आर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी. क्योंकि रिमेंबर, गोल क्या है? गोल सिर्फ कैपिटलिज्म से फ्रीडम नहीं करना. ठीक है, राइट. गोल ये नहीं है कि कोई फर्जी टाइप का क्लासिकल मार्क्सिज्म आ जाए जो कि अगेन टोटलिटेरिज्म आ जाए. नहीं, गोल है कंप्लीट फ्रीडम. सो दे आर इवन अगेंस्ट all kinds of irrelevant social practices, right, which are present in the society. That is so called as ideology, right. जो ideology के use करके which we are trying to fool people, right, they are even against this. So what do they want, sir? They want
a critical examination of your belief, a critical examination of the society, of the entire system, right? And that is what critical theory believes in. This is what critical theory believes in. ओहो सर, आप ये कहना चाह रहे हो ना, that means they will support science, right? They will support science. क्या लगता है आपको? Will critical theory support science इस context में? ठीक है, अरे बोलो अनम्यूट करके. Yes, sir. है ना? No, sir. हाँ, No. No, sir. द आंसर टू दिस लगता है यस होगा. ठीक है, लगता है यस होगा. अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो यस ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. वेल, द आंसर टू दिस इज नो. द आंसर टू दिस इज नो बिकॉज दे बिलीव इवन साइंस हैज लिमिट्स. क्योंकि हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है ह्यूमन इमेंसिपेशन. क्या साइंस के थ्रू तुम्हें ह्यूमन इमेंसिपेशन मिल जाएगा? साइंस के थ्रू फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर. मेटाफिजिक्स की कैसे करोगे ये बताओ? हाँ है ना? ठीक है, द गोल इज ह्यूमन इमेंसिपेशन. सो दे आर एक्चुअली वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट दिस साइंस. कैसे सर? प्लीज गिव एक्सप्लेनेशन. साइंस ने हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, and this overdevelopment of technology has actually enslaved the humans. Best example तुम्हारा मोबाइल फोन क्या है? हर 10 सेकेंड 20 सेकेंड में you have that habit of going back and opening that green icon, right? opening that blue icon, opening that reddish icon. ठीक है, क्या है? You are being enslaved by this technology. Your attention span is decreasing. Okay. So yes, technology was a liberator force, but now what has happened? It is a good servant but a bad master. It has overtaken man. Now science का man servant बन चुका है. Right? Earlier science was under his control. Today he is a victim. He is a servant of science. Right? ठीक है, so basically they are a target of what is called as scientific theory, also called as positivism. Positivism is basically scientific approach. ठीक है, इनके अगेंस्ट है. Second reason they talk about is कि look, science has a limit to all your questions, right? Human mind which we study through science, it cannot comprehend everything. Right? ठीक है, so they believe that human mind doesn't, or the science, it does not have capacity to answer all the question. ठीक है, and science has actually made us true and false. कभी right और wrong तो सिखाया ही नहीं. हाँ है ना? It has discouraged ethical evaluation of a situation. साइंस की वजह से क्रिटिकल इवेल्युएशन तो हो जाता है, बट क्या एथिकल इवोल्यूशन होता है? राइट? नो. बस देन वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स ना. ठीक है, वी स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, साइंस हैज एक्चुअली किल्ड योर मोरालिटी, योर रैशनैलिटी. ठीक है, साइंस हैज अंडरमाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज. आज वी आर विक्टिम्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, साइंस जो प्रमोट कर रहा है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को प्रमोट कर रहा है. दैट इज साइंस हैज अलाउड अस टू सी एवरीथिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट. भाई ये कैसे अपने काम का हो सकता है, ये कैसे अपने काम का हो सकता है, ये कैसे अपने काम का हो सकता है. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज. ठीक है, वी जस्ट लुक एट थिंग्स फॉर आवर यूटिलिटी. चलो थिंग्स तक तो इंपॉर्टेंट है आजकल. देन वी इवन लुक एट पीपल फॉर अ यूटिलिटी. बॉल पेन की तरह यू आर बीइंग यूज्ड एंड देन यू आर थ्रोन अवे. Whether in your company, whether in your, you can say, personal relationship, whether in your family, isn't it? तो हो गए ना enslaved. ठीक है, right? So they believe ये science and capitalism इन सब ने एक दूसरे को support करा है. right? They believe that science and capitalism walk hand in hand. The purpose is to promote and preserve capitalism. Technology development, more and more
is being, you can say, stuffed in the market, in your mouth, so that you become victim, you become enslaved. कहते हैं ना, जैसे ही तुम बोर हो जाते हो किसी चीज़ से, एक नया डेवलपमेंट, एक नया ऐप आ जाता है, ठीक है, एक नया, आजकल तो अब डेटिंग ऐप्स आ रहे हैं, राइट, जब लोग सोशल मीडिया से थक गए तो अब डेटिंग ऐप्स पे जा रहे हैं, राइट. रिसेंटली आई फाउंड एन ऐप जो एक्चुअली में दैट ऐप promotes second marriages, in the sense it is for people who are married and yet want to have an extramarital affair. There are apps like this. अब सोचो कितने बुरे तरीके से फंसाया जा रहा है, समझ लो, राइट. तो this is what enslavement is they are talking about. Is it clear? So you understood why they are against science. ठीक है, तो उनका मानना है कि भाई अभी भी there is a lot to be achieved. Human mind has not reached its full potential, and in fact the potential of human mind has been actually blocked by science. अब हम साइंस के ऊपर सोच ही नहीं रहे, ठीक है, राइट. इफ वी वांट टू गो बियॉन्ड फिजिक्स, राइट, तो वी नीड टू थिंक बियॉन्ड ना, मेटाफिजिक्स के डोमेन में जाना है तो फिजिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा. वी नीड टू एंटर द डोमेन ऑफ मेटा साइंस, ठीक है. तो ये चीज की बात यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. इज दिस क्लियर, राइट. सो दे बिलीव कि ट्रू नॉलेज तो पहली बात अभी ह्यूमन माइंड की बात ही नहीं है. दे इट जस्ट कैनॉट बी बेस्ड सिंपली ऑन इंफॉर्मेशन विच इज प्रमोटेड बाय साइंस, ठीक है. इट नीड टू बी यू कैन से filled with values, ethics, right? Science does not promote this. Okay, they believe that this technology has actually enslaved man, right? And all the theories should look to end these alienation of man. Yes, man के alienation को आपको end करना है. This is what you can say the critical school basically talks about. किसी का भी कोई डाउट? साइंस हैज एक्चुअली एनस्लेव्ड यू, ठीक है. आपके रीजन की एक बहुत ही लिमिट पे कर दिया. अब आज हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी में बिलीव कर रहे हैं. आपकी रैशनैलिटी के बहुत लिमिटेड हो चुकी है, राइट, ठीक है. इज दैट क्लियर, राइट. तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, राइट. एंड वी विल बी सीइंग दैट this later on becomes a very very good source of inspiration for the development of postmodernist school of thought. हम देखेंगे postmodernist school of thought जो डेवलप होता है, और नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे, that is through the ideas of these you can say critical school, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, राइट. एंड let us डिस्कस हु आर द थिंकर्स. इसके अब हम लोग क्रिटिकल स्कूल के थिंकर्स डिस्कस करते हैं. तो ये हम लोगों ने आइडियाज डिस्कस कर लिए. हु आर द प्रमोटर्स ऑफ क्रिटिकल स्कूल? तो याद रखना, हम, एच, हॉर्कहाइमर, देन अडर्नो, थियोडोर अडर्नो, ठीक है. एम, मार्कूसे, ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा, ठीक है, राइट. मार्कूसे, और आप हैबरमास से भी याद कर सकते हो. वन इज हैबरमास, ठीक है, जर्गन हैबरमास, ठीक है. तो ये थिंकर का नाम याद रखना. हम, क्रिटिकल हम है सर, HAM, ठीक है. हैम से ध्यान रखना, राइट. एंड दिस स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है. दिस स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रैंकफर्ट स्कूल. कभी क्रिटिकल के साथ फ्रैंकफर्ट आ जाए तो डर मत जाना, सर फ्रैंकफर्ट तो पढ़ा ही नहीं आपने. अरे भाई क्रिटिकल स्कूल ही है, राइट, ठीक है. एक्चुअली में इट स्टार्टेड ऑफ इन जर्मनी, बट हिटलर के टाइम में फ्रैंकफर्ट जर्मनी से ये लोग भाग गए लिए, एंड देन दे डेवलप्ड इन अमेरिका, राइट. तो ये चीज़ ध्यान रखना, दैट इज द रीजन फ्रैंकफर्ट बोला जाता है इनको, ठीक है. एंड दे वर वेरी वेरी यू कैन से skeptic to everything. They were critical of capitalism, critical of science, critical of all the evils in the society, right. ये सब यहाँ हम डिस्कस करते हैं. They were talking about alienation. They were talking about human emancipation.
ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म देते हैं ये लोग. एंड द फर्स्ट थिंकर इज हर्बर्ट मार्कूसे. ना हर्बर्ट मार्कूसे, ठीक है, हर्बर्ट मार्कूसे एक बुक लिखता है वन डिमेंशनल मैन. एंड इन हिज बुक वन डिमेंशनल मैन ही सेज दैट लुक, man has now become a 1D personality. Earlier क्या था वो? Earlier he was a multi-dimensional personality. Now he has become 1D personality. ठीक है, only one dimension has left, that he is into the rat race of what? Consumerism. और चाहिए और चाहिए और चाहिए, दिन रात मेहनत कर रहा है, 12-12 14-14 घंटे कर रहा है, जबकि तुम्हारी नीड 6 घंटे से ही हो जा रही पूरी, बट एक्स्ट्रा चाहिए और acquiring more and more, right? And as a result what is happening? You are taking a toll on your health. Mental stress आ रहा है. You are being enslaved. You are being enslaved. आज वो सिर्फ एक कंज्यूमरिस्ट बन चुका है. Consumerism is that sole dimension which is remaining in his life, right? And this consumerism is being propagated more and more by capitalism, by media. ठीक है, right? एक फोन आता है, उससे बोल जाता है, नया फोन आ जाता है, नया लैपटॉप आ जाता है. Now that demand rises higher. ठीक है, तो basically we are reduced to level of herds of sheep and goats, right? This culture is promoting consumerism. ये सब बात करता है. We have lost our critical reasoning. We have lost what our true culture was. ठीक है, right? Now we just are fulfilling our desire or appetite, ठीक है, which is what? Which is कभी पूरी नहीं होगी. ठीक है, man works for more than what is needed. ठीक है, he is destroying environment, psychology पे असर आ रहा है. ठीक है, right? He is destroying everything. He has now become a destructive creature. ये कहता है हर्बर्ट मार्कूसे. ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान. इज दिस क्लियर? किसी का भी कोई डाउट? तो जब तक कि ये स्पेल ऑफ ग्रेटिफिकेशन, स्पेल ऑफ मोर, स्पेल ऑफ डिजायर, स्पेल ऑफ वांट, थर्स्ट, ये एंड नहीं होगी, तब तक कभी फ्रीडम नहीं आएगी दोस्त. यू विल नेवर हैव ट्रू फ्रीडम. एंड ये थर्स्ट और आपकी कौन बढ़ा रहे हैं? एड्स यूट्यूब पे, ये ले लो, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो, वो नई बाइक खरीद लो, ये नया कार खरीद लो, हजारों जगह, ये नई जगह चले जाओ. ठीक है, राइट? देयर इज एंडलेस मटेरियल अवेलेबल इन द सोसाइटी, राइट? यही चीज यूपीएससी एस्पिरेंट में आज आप देख लो. अर्लियर जब हम तैयारी करते थे तो देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी, कि भाई अवेलेबल ही नहीं था कुछ. आज क्या है? प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. इतना सारा है कि सेलेक्ट कैसे करें, क्या करना है, राइट? इतना मटेरियल आ चुका है अब, बस. तो लोग अब इसके विक्टिम है. ठीक है, सो दिस वाइड स्प्रेड क्रेज फॉर दिस कंज्यूमर गुड्स हैज, you can say, distorted the nature of man, and today he is just a consumer. आज वो एक सिर्फ कंज्यूमर है. ठीक है, सो हर्बर्ट मार्कूसे, वन डिमेंशनल मैन. सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज थियोडोर अडर्नो. एंड अडर्नो ने क्या बोला? अडर्नो ने हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डायलेक्टिक्स. नेगेटिव डायलेक्टिक्स मीन्स, रिमेंबर डायलेक्टिक्स क्या था? एक पॉजिटिव आइडिया, एक नेगेटिव आइडिया, द पॉजिटिव प्रोग्रेसेस, द नेगेटिव पेरिशेस. ये हमने डिस्कस करा था. बट अब क्या हो चुका है? सोसाइटी इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वी आर मूविंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन. वी आर डिग्रेडिंग आवर सेल्फ. वही चीज, हम डिग्रेड होते जा रहे हैं. पहले टेस्ट में 100 नंबर आए, दूसरे में 90 आए, तीसरे में 80 आए, फिर आपके 10 आए. डिग्रेड हो रहा है परफॉर्मेंस. ठीक है, राइट? इंस्टेड ऑफ लिबरेशन वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर एनस्लेवमेंट होता जा रहा है, हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है. ठीक है, तो ये लोग यहाँ ये बात करते हैं. नेगेटिव डायलेक्टिक्स हैज बिगन. Negative dialectics, this information and communication technology, it is spreading more and more consumerism, more and more capitalism को promote किया जा रहा है. ठीक है, and we are degrading ourself. ठीक है, is this clear? So a negative dialectics has
begin. Instead of moving towards freedom, we are becoming more and more slaves. The slaves of consumerist culture, the slaves of capitalism, the slaves of utility, the slaves of desire, the slaves of media. इन सब के हम slaves बनते जा रहे हैं. Negative dialectics. Is this clear? किसी का भी कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया हर्बर्ट मार्कूसे, ठीक है, थियोडोर अडोर्नो. ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा, थियोडोर अडोर्नो के साथ ही मैक्स हॉर्कहाइमर का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है. इन दोनों ने मिल के कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव डायलेक्टिक्स लिखी है, बुक है. ठीक है, नेक्स्ट आता है जर्गन हैबरमास. नाउ हैबरमास हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस. ये हम लेजिटिमेशन क्राइसिस वेलफेयर स्टेट में ही पढ़ते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझो क्या होता है. हर्बर्ट मार्कूसे सेज दैट लुक, ठीक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस, दिस कैपिटलिज्म, it has eroded the legitimacy of all institutions in the society. ठीक है, legitimacy is, you can say, the acceptance, willful acceptance by lawful acceptance by the people. ठीक है, the credibility, ऐसे देखो, credibility को erode कर दिया है सारे के सारे institutions ने की, right? क्योंकि today these are just, you can say, victims. These have been just created to perpetuate what? Capitalism. Right? These are just trying to legitimize scientific knowledge. Scientific knowledge को ही promote कर रहा है, and that to what? Instrumental rationality. ये promote कर रहा है. All these institutions, they have been degraded. ठीक है, they are very very mechanical. ठीक है, आज सिर्फ economic interest dominate कर रहा है in all these institutions. Right? The social interest is somewhere on the background. ठीक है, state is just not interested in society, in human emancipation. State is just interested in economics. Right? So we need to go for new social movements, feminist movements, environmental movements, counterculture movements to solve our problems. ठीक है, तो this capitalism is like a cancer. ठीक है, it has degraded all the institutions. Institutions have become merely very very instrumentalist in nature, right? And the instrumentalist basically looking to fulfill very narrow materialistic aims, right? इसके बारे में बात करता है, right? Capitalism has undermined the legitimacy of these institutions. कैसे? It has just legitimated scientific knowledge and automatic machines. इनको legitimate कर दिया ना, तो these institutions which were built for human emancipation now no longer are accepted. ठीक है, आज तो सब तरफ साइंस की चल रही है, आज तो सब तरफ ऑटोमेटिक मशीन्स की चल रही है. ठीक है, आज ये चल रहा है. Is this clear? Relations between humans are now mechanical, now very very scientific. Now we don't need such institutions. ठीक है, social concern तो आ रहा ही नहीं है. ठीक है, so it has promoted science, it has promoted instrumental rationality, and these institutions have become useless. There is a decline of legitimacy, also called as legitimation crisis. Is this clear? साइंटिफिक नॉलेज इन सबको प्रमोट किया जा रहा है, तो ह्यूमन इमेंसिपेशन का तो कोई चांस है ही नहीं, बिल्कुल सर भूल जाओ. सो विद दिस वी एंड क्रिटिकल स्कूल. किसी का भी कोई डाउट यहाँ तक? पूछो जिसका कोई डाउट है. नेक्स्ट वी बिगिन इज स्ट्रक्चरल स्कूल. स्ट्रक्चरल स्कूल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पूछो. कोई डाउट नहीं है? चलो, if there is no doubt, let us begin the structuralist school. structuralist school को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं.
ठीक है. सो नियो मार्क्सिज्म के अंदर फर्स्ट इज क्रिटिकल स्कूल. क्रिटिकल स्कूल के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया हैम, हॉर्खहाइमर, अडोर्नो, मार्कूसे एंड हैबरमास. ठीक है, चार को डिस्कस किया था. देन वी कम टू द व्हाट, वी कम टू द स्ट्रक्चरल स्कूल. ठीक है, एंड इसके अंदर वील बी डिस्कसिंग अल्थुजर एंड मेजरली ग्रैमशी. तो ग्रैमशी तो आई कैन से इट इज डन. ठीक है, बट व्हाट डू स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल बिलीव इन. ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल किस में बिलीव करते हैं ये हमें यहाँ पे डिफाइन करना चाहिए. तो स्ट्रक्चरल स्कूल बेसिकली ऑल्सो टॉक्स अबाउट सटल, यू कैन से, एस्पेक्ट ऑफ डोमिनेशन, बट दे वॉन्ट अ वेरी वेरी साइंटिफिक एनालिसिस टू दिस. अब साइंटिफिक एनालिसिस कैसे होगा? दे विल ट्राई टू एनालाइज different structures which are present in the society. ये इनको एनालाइज करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं. All the social institution they will try to analyze this. ठीक है, so first and foremost they declare that there is an independent existence of the superstructure. ठीक है, which is independent from base. So merely कहते हैं ना reflection of the base is an incorrect doctrine. पहली बात तो ये ध्यान रखना. ठीक है, एंड दीज स्ट्रक्चरल स्कूल, ठीक है, दीज स्ट्रक्चरल स्कूल दे आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रैमशी. ग्रैमशी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, राइट. एंड यहाँ पे अल्थुजर स्पेसिफिकली कम्स. ही सेज दैट लुक, ये जो इकोनॉमिक डायमेंशन बेसिक स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करी गई है, दिस इज एन ओवर एम्फेसिस, राइट. एंड ही गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी स्ट्रक्चरल अप्रोच. मल्टी स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं, राइट. एंड ही सेज दैट लुक, ठीक है, वट एवर यू कैन से ह्यूमन डज और एनी ह्यूमन एक्टिविटी यू वांट टू नो, दैट इज नॉट जस्ट डिराइव्ड फ्रॉम हिज मटीरियल कंडीशंस. देयर आर वेरियस स्ट्रक्चर्स which you can say which guide the human actions, right. बहुत सारे different structures होते हैं and we need to study that. ठीक है, तो structuralism as a philosophical doctrine holds that the nature and the form of any entity or any action of human beings are determined by their underlying structures. ठीक है, एंड अगर हम स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी करें देन वी विल फाइंड देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट. मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, राइट. ह्यूमन एक्टिविटी इज गाइडेड बाय मल्टीपल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, राइट. एंड लुइस अल्थुजर ही एडवांस्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ, यू कैन से, interdependence of base and superstructure, right. And he was basically talking about more of independence of superstructure. And he said कि भाई actual revolution कोई ज़रूरी नहीं है that we need to begin from the base. It can start from anywhere. It can start from art, literature, folklore, mass media, even religion. ये चीज़ के बारे में the structure school talks about. ठीक है, तो यहाँ लुइस अल्थुजर, ग्रैमशी, इनके बारे में ध्यान रखना. ग्रैमशी believes in the concept of hegemony, that the capitalism is existing because of the hegemony which is created by civil society, which is a part of superstructure. Again, the importance of superstructure, right. He was very very much inspired by that thinker, I'm forgetting, Benedetto Croce, right, who gave that history is not merely a movement of matter. There is a role of culture, there is a role of there is a role of ideology. ठीक है, इन सब से हिस्ट्री शेप होती है. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना. ठीक है, इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दी स्ट्रक्चरल स्कूल दे आर ऑल्सो अगेंस्ट, यू कैन से, मतलब अगेंस्ट क्या मतलब, दे क्रिटिसाइज क्रिटिकल स्कूल, क्योंकि उनका मानना है क्रिटिकल स्कूल ने तो बिल्कुल ही अलग कर दिया. रियल थॉट्स ऑफ मार्क्स वर वही बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर. बट यस, मार्क्स तुम थोड़ा सा गलत कर गए. यू हैव ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन बेसिक स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ठीक है, यस, वी ऑल्सो बिलीव
that these structures are very important and what you claimed was right. ठीक है, right? Society is divided into different structures, but yes, superstructures also have their own role. उनका खुद का भी रोल होता है. ठीक है, so they were very inspired by the ideas of mature Marx. ठीक है, इकोनॉमिक डायमेंशन को ओवर एम्फेसाइज करके रखा. इज दिस क्लियर यहां तक? बताइए. यस सर. किसी का भी कोई दिक्कत, कोई एनी डाउट सर हियर? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रक्चर स्कूल भी खत्म होता है. अल्थुजर, ग्रैमशी. ठीक है, सो जल्दी से एक बार अगर हम पूरा रिवाइज करें, इफ़ वी टॉक अबाउट पूरा का पूरा मार्क्सिज्म को जल्दी से देखें, तो मार्क्सिज्म फट से दो टाइप. यहाँ आता है क्लासिकल मार्क्सिज्म, यहाँ आता है नियो मार्क्सिज्म. क्लासिकल मार्क्सिज्म में अंदर बेसिक आइडियाज़ जो थे आपके डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ठीक है, सरप्लस वैल्यू, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस वर मेजरली लेड बाय व्हाट, लेनिन, ठीक है, माओ, रोजा लग्जमबर्ग इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स या आफ्टर मार्क्स. नियो मार्क्सिज्म के अंदर अगेन दो स्कूल आते हैं. वन इज़ द क्रिटिकल स्कूल, अदर इज़ द स्ट्रक्चरल स्कूल. ठीक है, क्रिटिकल स्कूल के अंदर वी स्टडी अबाउट मोर ऑफ ह्यूमनिस्टिक इंटरप्रिटेशन, मोर ऑफ थ्योरी ऑफ एलिनेशन वगैरह के बारे में. एंड दिस इज लेड बाय हैबरमास, हॉर्काइमर, अल्थुजर नहीं, अडर्नो, ठीक है, मार्कूसे. एंड स्ट्रक्चरल स्कूल में आता है आपका ग्रैमशी एंड अल्थुजर. दिस इज मच मोर साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बात होती है. राइट, दे बिलीव इन इंपॉर्टेंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स. राइट, इनके बारे में यहाँ बात करते हैं. सो दैट्स इट फॉर द मार्क्सिज्म. ठीक है, किसी का भी कोई डाउट यहाँ तक? किसी का भी कोई डाउट है तो पूछे. ठीक है, एक छोटा सा और मतलब टॉपिक क्या एग्जैक्टली कभी पूछा जा सकता है, हालांकि पूछते नहीं है, बट स्टिल पोस्ट मार्क्सिज्म पे लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मार्क्सिज्म. ठीक है, ये क्या हो सकता है? ठीक है, तो बेसिकली पोस्ट मार्क्सिज्म रिफर्स टू अ फिलोसफिकल आउटलुक, या आप कह सकते हो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, विच सीक्स टू रिकंसिडर द रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म स्पेशली आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर. जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया था, फ्रांसिस फुकुयामा केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ हिस्ट्री, डैनियल बेल केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड ऑफ आइडियोलॉजी, which means that socialism, Marxism, they had become irrelevant. Right, the world has accepted liberalism as the sole winner. Right, but they again talk about the negative externalities which has emerged due to the globalization. And is globalization की negative externalities will always make Marxism very very relevant. ठीक है, तो इसके बारे में यह बात करते हैं. ठीक है, मार्क्सिज्म विल ऑलवेज रिमेन रेलिवेंट. राइट, द इश्यूज ऑफ पावर एंड इनइक्वालिटी विल ऑलवेज रिमेन सेंट्रल टू द वर्ल्ड बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म. राइट, एंड देयरफॉर वी फाइंड दैट मार्क्सिज्म बीइंग रेलिवेंट. तो आज पोस्ट मार्क्सिज्म का जमाना आ रहा है. ठीक है, एंड इनमें आप देखोगे तो यू फाइंड रिचर्ड वोल्फ, ठीक है, माइकल फोकू, ठीक है, जूडिथ बटलर, ये लोग सपोर्ट करते हैं इन थ्योरीज को. ठीक है, सो दे बिलीव दैट दो adherents of Marxism should come forward. They should keep analyzing the structure of domination in the society, such as bureaucracy, technocracy, business, military, culture hegemony, right? And they should keep on fighting for, you can say, ending the oppression. ठीक है, and this intellectual response to this kind of, you can say, exploitation जो present times में चल रहा है is post Marxism. ठीक है, so contemporary times में globalization के era में how what should be the response, तो ये आपके बात चलेगी. Is this clear? Right? So what is the final relevant of Marxism? Final कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए, relevance of Marxism, तो याद रखना मार्क्सिज्म दो टाइप से रेलिवेंट है. फर्स्ट, अगर मैं सर इसको एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिस्कस करूं, ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एज वी नो इज यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन. तो यस, एज एन आइडियोलॉजी इट इज यूज्ड फॉर मोबिलाइजिंग द ऑप्रेस्ड क्लासेस, राइट, अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट क्लास. ठीक है, द बुर्जुआस. ठीक है,
राइट, ठीक है, इनके लिए क्या होगा, ठीक है, आपका हम क्या करेंगे, ठीक है, व्हाट वी विल डू वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग द मासेस ऑन द लाइंस ऑफ मार्क्सिज्म, ठीक है। तो प्रोलेटेरिएट क्लास को हम यहाँ पे अगेंस्ट द बुर्जुआ कर सकते हैं, राइट, ठीक है। तो एक मास मोबिलाइजेशन के लिए हमें चाहिए ना, ठीक है, रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज एक्सेट्रा, राइट, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। एंड प्रेजेंट टाइम्स में आपको दिख भी रहा है एज एन आइडियोलॉजी इट इज स्टिल एमर्जिंग इन द फॉर्म ऑफ न्यू लेफ्ट, राइट, पोस्ट मार्क्सिज्म फिर से आ रहा है, देखो क्या हो रहा है, इट इज गोइंग फॉर द ऑर्गेनाइजिंग पीपल, न्यू सोशल मूवमेंट्स वगैरह राइज कर रहे हैं अगेंस्ट द एंटी यू कैन से ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं। सो एज अ टूल ऑफ मोबिलाइजेशन हमेशा रेलिवेंट रहेगा। सेकेंड, सर एज अ टूल ऑफ एनालिसिस also it will remain relevant, यानी as a tool of science, ऊपर था as a tool of ideology, यहाँ as a tool of science also it will always remain relevant। क्यों क्यों क्योंकि हम through this analysis can check the inhumane exploitation of capitalism, ठीक है, right, ठीक है, we can understand politics is never autonomous of economics, right, as a tool of science it will link you can say politics and economics, ठीक है, मार्क्सिज्म के थ्रू, राइट, ठीक है। तो ये हम कभी क्लेम नहीं कर सकते कि पॉलिटिक्स इज इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिक्स, ऐसा नहीं है, बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच वो हमेशा रेलिवेंट रहेगी, right, political economy approach which talks about economic analysis of the the analysis of the economic policies of the state, वो यही relevant रहेगा, ठीक है। so as a tool of ideology, right, as a tool of science, that is political economy approach, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। and we can also see that again during the 2008 global financial crisis, Das Capital was the most sold book, right, and again during the times of COVID crisis, again we had talked about the ideas of Marx, right, socialism, and the countries who had social systems were you can say performing far better than the you can say capitalist countries.